Good morning, students. This is your English teacher. Today we are going to start our ninth chapter of Beehive Bond of Love. So, this is the chapter which is actually showing the animal love and the bond between the human and the animal. As you all know from very many of the experiences that animal have a very good sense of belonging with humans, and they're actually the best friends of human. So in this chapter we are going to know that how a sloth bear can have a sense of affection and have all the individual characteristics. Let's start with that. First of all, let's read about the sloth bears. Sloth bear inhabit forest areas including the tropical rainforests of India and grasslands at lower elevations. Sloth bears have very shaggy hair and long muzzles. Just see here, shaggy hair है उनके, long muzzles है. यूजिंग देयर क्लॉज, तो वो अपने इन क्लॉज को जो यूज़ करते हैं किसके लिए, तो डिग, एंड दे कैन ऑल्सो यूज़ देयर लिप टू फॉर्म अ ट्यूब. तो ये अपनी लिप्स को यूज़ कर सकते हैं एक ट्यूब बनाने के लिए, एंड देन विच कैन गो deep into the ground or into the hard to reach areas. अब hard to reach areas जहाँ पे पहुँचा नहीं जा सकता, like dead trees for their food. So the main food is termites. तो उनका main food क्या है, दीमक है, termites है. You can hear them suck up their food from several feet away. Let's start with the chapter now. Very first paragraph. I will begin with Bruno, my wife's pet sloth bear. I got him for her by accident. 2 years ago, we were passing through the sugarcane fields near Mysore. People were driving away the wild pigs from the fields by shooting at them. Some were shot and some escaped. We thought, we thought that everything was over when suddenly a black sloth bear came out panting in the hot sun. So, what the writer want to say that कि आई विल बिगिन विद ब्रूनो, जिसको मैं एक मेरे वाइफ का पेट स्लॉथ बेयर, जिसको मैं बाय एक्सीडेंट उसके लिए लेके आया. तो 2 साल पहले कह रहे हैं कि वी वर पासिंग थ्रू द शुगर केन फील्ड मैसूर में, जहाँ पर लोग जो थे वाइल्ड पिग्स को रास्ते से हटा रहे थे उनको शूट करके. कुछ तो शूट हो गए और कुछ जो है बच के भाग गए. बट देन हमने सोचा कि शायद सब कुछ ओवर हो चुका है जब एक स्लॉथ बेयर हमारे रास्ते में आ गया इतनी हॉट सन में, और वो पैंटिंग कर रहा था, हाफ रहा था. सेकेंड पैराग्राफ देखिए. नाउ आई विल नॉट शूट अ स्लॉथ बेयर वेंटनली, but unfortunately for the poor beast, one of my companions did not feel that way about it and promptly shot the bear on the spot. तो कहते हैं कि मैं तो ऐसे किसी स्लॉथ बेयर को बिना किसी कारण के, फॉर नो गुड रीज़न, वेंटनली फॉर नो गुड रीज़न, ऐसे ही नहीं मारूंगा. लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे उस बेचारे बीस्ट बोला गया है उस स्लॉथ बेयर को, अनफॉर्चुनेट था उस बियर के लिए कि मेरे एक फ्रेंड ने, कंपेनियन ने उसको शूट कर दिया, और उसी टाइम मतलब उसने प्रॉम्प्टली शॉट द बियर ऑन द स्पॉट. तो थर्ड देखिए पैराग्राफ. As we watched the fallen animal, we were surprised to see that the black fur on its back moved and left the prostrate body. Then we saw it was a baby bear that had been riding on its mother's back when the sudden shot had killed her. The little creature ran around its prostrate पेरेंट मेकिंग ए पिटीफुल नॉइस. हाँ, क्या बोल रहे हैं वो थर्ड पैराग्राफ में कि जैसे हमने देखा उस फॉलन एनिमल को, तो हमें हैरानी हुई कि उसकी जो ब्लैक फर है, ब्लैक फर हो एकदम से जैसे हिलने लग गई. और फिर हमने देखा कि ये असल में क्या था, उस जो फॉलन एनिमल था, जो उसका बेबी बियर कब था, जो कि उसकी बॉडी से अलग होकर वो अपनी मदर के प्रोस्ट्रेट बॉडी, क्या होती है बेटा, डेड बॉडी यू कैन से, डिसीज्ड, तो अपनी मदर की बैक के ऊपर भाग कर सडनली जिस शॉट ने उनको इसको किल कर दिया, तो वो लिटिल जो क्रिएचर था वो अपनी मदर की डेड बॉडी के अराउंड वो बहुत ही पिटीफुल नॉइस कर रहा था. ठीक है. So let's see the fourth paragraph. I ran up to it to attempt to capture. It scooted into the sugarcane field. Following it with my companion, I was at last
able to grab it by the scruff of its neck, while it snapped and tried to scratch me with its long hooked claws. तो क्या कहा उन्होंने कि हमने फिर जैसे वो भागा मतलब भाग रहा था तो हम एकदम से भागे उसको पकड़ने के लिए, अटेम्प्ट टू कैप्चर, उसको पकड़ने के लिए, लेकिन ये भाग कर स्कूटेड रैन अवे, ये भाग कर शुगर केन के फील्ड में चला गया और फिर मेरे कंपेनियन ने भी मेरा साथ दिया और एट लास्ट मैंने इसको इसके पीछे स्क्रफ से, नेक से के पीछे से इसको पकड़ लिया। तो ये बल्कि ये मुझे स्नैप काटने की कोशिश कर रहा था, स्क्रैच अपने लॉन्ग हुक्ड क्लॉज के साथ मुझे खरोचने की कोशिश कर रहा था, अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। फिफ्थ पैरर देखिए, वी पुट इट इन वन ऑफ द गनी बैग्स we had brought, and when I got back to Bangalore, I presented it to my wife. She was delighted. She at once put a colored ribbon around its neck, and after discovering the cub was a boy, she christened it Bruno. तो कहते हैं कि हमने इसको पकड़ कर फिर मैंने इस गनी बैग में जो बोरी होती है उसमें हमने डाल दिया, क्योंकि वो हम लेके आए थे। तो तब हम बैग जब हम बेंगलोर गए तो मैंने इसको इसी तरह से अपनी वाइफ को प्रेजेंट किया। वो बहुत खुश हो गई, शी वॉज डिलाइटेड, वो बहुत खुश हो गई। एंड शी एट वंस, उसी टाइम उसने उसकी नेक के अराउंड एक रिबन बांध दिया कलरफुल। और जब उसको पता चला कि दैट इज़ अ बॉय, एक मेल है ये बियर कप, तो उसको नाम क्या दे दिया, क्रिश्चियन नेम करना, नेम्ड इट ब्रूनो। क्या नेम दिया उसको, ब्रूनो। 6th पैराग्राफ देखिए, Bruno soon took to drinking milk from a bottle. It was but a step further, and within a very few days, he started eating and drinking everything else. And everything is the right word. He ate porridge made from any ingredients, vegetables, fruit, nuts, meat, especially pork, curry, and the rice, regardless of the condiments and chilies, bread, eggs, chocolates, sweets, pudding, ice cream, etc., etc., etc. As for drink, milk, tea, coffee, lime juice, aerated water, buttermilk, beer, alcoholic liquor, and in fact anything liquid, it all went down with relish. तो व्हाट दे वांट टू से हियर इन द 6th पैराग्राफ कि मतलब ब्रूनो जो था वो पहले तो बॉटल से उसको दूध पिलाया जाता था, लेकिन इससे अगले स्टेप में बहुत ही कम दिनों में अब वो कुछ भी खा लेता था। एवरीथिंग एक्चुअली उसके लिए राइट वर्ड था, क्योंकि वो पॉरेज वैसे बोल देते खिचड़ी को, लेकिन पॉरेज यू कैन से कि वो किसी भी चीज़ का मिक्सचर खा लेता था, चाहे वो किसी वेजिटेबल का बना हो, फ्रूट्स का बना हो, नट्स का हो, मीट स्पेशली पॉर्क, ठीक है, करी, ये सब चीज़ें वो आराम से खा लेता था। और अगर ड्रिंकिंग की बात करें तो टी, कॉफ़ी, मिल्क, एरेटेड वाटर, बटर मिल्क, इवन अल्कोहल और बियर, ऑल द थिंग्स इट वेंट डाउन विद रेलिश। वेंट डाउन ये निगल लेता था, विद रेलिश, विद टेस्ट। सो ये सारी चीज़ें खा लेता था। 7th पैरा देखिए, The bear became very attached to our Alsatian dogs and to the children of the tenants living in our bungalow. He was left quite free in the younger days and spent his time in playing, running into the kitchen and going to sleep in our bed. तो जो ये बियर था पहले तो ये बहुत ही हमारे जो अल्सेशियन डॉग्स थे, डॉग्स की ब्रीड होती है, उनके साथ इसकी बहुत अटैचमेंट हो गई। और स्पेशली हमारे जो टेनेंट्स थे घर में, हमारे बंगलों में रहते थे, तो उनके बच्चों के साथ भी इसकी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो गई। और इसको इसके यंगर डेज में तो फ्री ही छोड़ा जाता था, तो ये अपना सारा दिन कभी खेल के भाग कर, कभी किचन में चला जाता था, इवन कभी वो हमारे बेड पे आके सो भी जाता था। तो इस तरह से उसने टाइम स्पेंड करता था। अब 8th पैराग्राफ देखिए, One day an accident befell him. I put down poison, barium carbonate, to kill the rats and mice that had got into my library. Bruno entered the library as he often did, and he ate some of the poison. And paralysis set in to the extent that he could not stand on his feet. But he dragged himself on his stumps to my wife, who called me. I guessed what had happened. Off I rushed in the car to the vet's residence. A case of poisoning, tame bear, barium carbonate. What to do? तो
अभी 8 पैराग्राफ में व्हाट दे वांट टू से कि एक दिन एक ऐसे एक्सीडेंट ने इसको मुसीबत में डाल दिया, बेफेल कर दिया। क्या थी वो? क्या राइटर इज सेइंग कि मैंने कुछ बेरियम कार्बोनेट पॉइजन रखा हुआ था अपनी लाइब्रेरी में चूहों को मारने के लिए, क्योंकि बहुत सारे चूहे आ गए थे मेरी लाइब्रेरी में। तो ब्रूनो मेरी लाइब्रेरी में उसने एंटर किया और जैसे कि वो करता था उसने कुछ पॉइजन खा लिया। तो पैरालाइसिस इतना ज़्यादा उसका पैरालाइज हो गया, यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज़ पैरालाइसिस। ठीक है, जब हमारी जो बॉडी पार्ट्स जो है काम करना बिल्कुल बंद कर देते हैं, तो इतना ज़्यादा हो गया कि ही कुडंट स्टैंड ऑन हिज फीट। तो उसने अपने आप को बहुत ही मुश्किल से अपने मतलब ड्रैग करके वो मेरी वाइफ तक अपने आप को लेके आया। एंड देन मेरी वाइफ ने मुझे कॉल किया, बुलाया, और तभी मैं समझ गया कि व्हाट हैड हैपेंड। एंड देन हमने एकदम से हम कार में इसे लेकर वेटनरी डॉक्टर, वेल्स रेजिडेंस वेटनरी डॉक्टर के घर गए। देन मैंने बोला अ केस ऑफ पॉइजनिंग, ये टेम बियर है, बेरियम कार्बोनेट, मतलब मैंने उसको बताया कि खा लिया है, क्या करूँ, व्हाट टू डू। देन 9th देखिए, out came his medical books and a feverish reference to index begin. What poison did you say, sir? Barium carbonate. Yes, but barium salts, barium carbonate, symptoms, paralysis, and treatment injection of just a minute, sir. I'll bring my syringe and medicine. तो तभी उस वेटनरी डॉक्टर ने अपनी जो मेडिकल बुक निकाली और फेवरिट रेफरेंस, और बहुत ही मतलब एक्साइटमेंट से वो देखने लग गया उसके इंडेक्स में से। और वो उसने मुझसे पूछा कौन सा पॉइजन बोल रहे थे सर? तो मैंने बताया बेरियम कार्बोनेट। फिर उसने ढूंढ के बताया कि हाँ बेरियम कार्बोनेट है, उसके सिम्टम्स ये है। एंड देन उसने पढ़ा कि व्हाट इज़ द इंजेक्शन फॉर दिस। एंड देन ही सेड जस्ट अ मिनट सर, मैं जस्ट अपनी सिरिंज और मेडिसिन लेके आता हूँ। अ डैश बैक टू द कार, Bruno still floundering about on his stumps, but clearly weakening rapidly, some vomiting, heavy breathing with heavy flanks and gaping mouth. तो अभी जब वो कहता है कि मैंने कार को बैक किया, तो जो ब्रूनो था वो अभी भी फ्लाउंडर कर रहा था। व्हाट इज़ द मीनिंग? फ्लाउंडरिंग, स्ट्रगलिंग टू मूव। ठीक है, अभी भी मतलब अपने स्टम्प्स के ऊपर ऐसे कोशिश कर रहा था मूव होने की, लेकिन नहीं हो पा रहा था। तो वो जैसे ऐसे लग रहा था कि बहुत तेज़ी से वो वीक होता जा रहा था, उसकी बॉडी मतलब बिल्कुल भी मूवमेंट करना बंद कर रही थी। वॉमिट भी थोड़ी बहुत आई, हैवी ब्रीदिंग थी उसकी, फ्लैंक्स बहुत ही हैवी सांस ले रहा था, गेपिंग माउथ, माउथ जैसे खुला हुआ था। ठीक है, देन 10th पैरा देखिए, होल्ड हिम एवरीबॉडी, in goes the hypodermic. Bruno squeals. 10 cc of the antidote enters his system without a drop being wasted. 10 minutes later, condition unchanged. Another 10 cc injected. 10 minutes later, breathing less stertorous. Bruno can move his arms and legs a little, although he cannot stand yet. And 30 minutes later, Bruno gets up and has a great feat. He looks at us disdainfully, as much as to say, what's barium carbonate to a big black bear like me? So Bruno is still eating. So 10th paragraph में what they wanted to say that जब डॉक्टर अपनी सिरिंज लेके आया तो उसने बोला कि सभी उसको पकड़ के रखो। तभी उसने हाइपोडर्मिक यानी कि अ लॉन्ग नीडल यूज टू गिव एन इंजेक्शन। ओके, उसने वो इंजेक्शन उसको मतलब दी। तभी ब्रूनो की चीख की आवाज़ आई, चीख मारी ब्रूनो ने। एंड देन 10 cc जो एंटीडॉट था वो उसके सिस्टम में गया विदाउट बीइंग वेस्ट, ड्रॉप भी नहीं वेस्ट हुई। देन बट 10 मिनट्स के बाद अभी कंडीशन चेंज नहीं हुई। देन एक और 10 cc का इंजेक्शन गया। अब उसकी जो ब्रीदिंग थी दैट वाज लेस स्ट्रेटरस, यू कैन से भी, मतलब एक होता है ना ब्रीदिंग करते हुए व्हेन वी मेक मच नॉइस, व्हेन वी आर नॉट एबल टू ब्रीद वेल, तो वो उसमें बहुत आवाज़ आती है, तो दैट इज स्ट्रेटरस। लेकिन अब थोड़ा सा सेकेंड इंजेक्शन के बाद वो जो आवाज़ आ रही थी ब्रीदिंग में थोड़ी कम हुई। नाउ ब्रूनो जो था वो आर्म और फीट को मूव तो कर रहा था, लेग्स को, बट अभी भी वो स्टैंड नहीं हो पा रहा था। देन 30 मिनट्स लेटर ब्रूनो उठ गया और बहुत पेट भर के खाया, हैड अ ग्रेट फीट, उसने पेट भर के खाया, काफ़ी खाया। एंड देन जैसे हमारी और वो डिसडेनफुली, नफरत से, गुस्से से देख रहा है, और जैसे ये कहना चाहता हूँ कि एक बेरियम कार्बोनेट जैसा
पॉइजन मेरे जैसे इतने बड़े बियर को क्या कह सकता है। सो अभी ब्रूनो जो है बिल्कुल नॉर्मल हो गया एंड स्टिल ईटिंग। अब देखिए 11th पैराग्राफ। अनदर टाइम, दिस इज द सेकेंड इन दिस इंसिडेंट, जब फिर से उसने ऐसा कुछ किया। He just found nearly 1 gallon of old engine oil, which I had drained from the sump of the Studbaker and was keeping as a weapon against the inroads of termites. He promptly drank the lot, but it had no ill effect whatever. तो 11th पैराग्राफ में व्हाट दे वांटेड टू से कि अनदर टाइम क्या था, उसने फिर से उसको कुछ जो मैंने कुछ इंजन ऑयल निकाल रखा था अपने स्टडबेकर कार है उसकी, उसके इंजन में से, ताकि मैं उस ओल्ड इंजन ऑयल को जो घर में टर्माइट्स दीमक काफ़ी आ गई थी तो उसको एज अ वेपन यूज़ करने के लिए। लेकिन ब्रूनो को जब वो तेल मिला तो उसने प्रॉम्प्टली उसको भी पी लिया, लेकिन इसका कोई भी इल इफ़ेक्ट नहीं हुआ। सो अप टू दिस द नेक्स्ट पार्ट जो है वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो दैट आई विल ऑल्सो बी सेंडिंग यू।